નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વડોદરા શહેર વોર્ડ નંબર 19નો એક વિસ્તાર કે જે સુવિધાઓથી વંચિત છે. એડવોકેટ ધર્મેન્દ્રસિંહ રાજપૂત દ્વારા વોર્ડ નંબર 19ના વિસ્તારમાં ફરીને લોકોની સમસ્યાઓ જાણી અહીંના કાઉન્સિલરો અને સરકાર પ્રત્યે પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો અને આવા ન કામ કરનારા કાઉન્સિલરને ફરી વોટ ન આપવા માટે અને તેઓને બદલી નાખવામાં આવે તે માટે લોકોને તેમણે સૂચના કરી. એડવોકેટ ધર્મેન્દ્રસિંહ રાજપૂત પોતાના ઘરેથી નીકળી 6 થી 7 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં ફર્યા. વોર્ડ નંબર 19ના કાઉન્સિલરની આંખો ખોલવાનો પ્રયાસ કર્યો, સરકારની આંખો ખોલવાનો પ્રયાસ કર્યો. કામધેનુ રોડથી શરૂ પ્રથમ પેરેડાઇઝ, નીલકંઠ રેસિડેન્સી, દીપ સોસાયટી અને અયોધ્યા નગર સુધીના રોડ રસ્તાઓ એટલા બિસ્માર હાલતમાં છે કે ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા છે, ખાડા પડી ગયા છે, ગંદકીનું સામ્રાજ્ય છે, જેના લીધે રોગચાળો ફેલાઈ શકે, અલગ અલગ બીમારીઓ લોકોને થઈ શકે તેવી પરિસ્થિતિ છે. અને તેમાં લોકોનું કહેવું છે કે અહીંયા આજ જીવન સુધી કોઈ કોર્પોરેટર કે અધિકારીઓ જોવા સુદ્ધા નથી આવ્યા. પોતાનો પગાર આવે એટલે દવાખાનામાં જ જઈને ભરવો પડે છે આ લોકોએ, કારણ કે હેરાન થઈ રહ્યા છે અહીંયાના લોકો. રાહદારીઓની ગાડીઓને નુકસાન, બાળકોને સ્કૂલ જવા માટે અડચણરૂપી આ ટ્રાફિક, તેમ છતાંય ભ્રષ્ટાચારી કોર્પોરેટરો અને અધિકારીઓના પેટનું પાણી નથી હલતું. અને આજથી આ 6 થી 7 કિલોમીટર વિસ્તારમાં ચાલીને આ ભ્રષ્ટ અધિકારીઓની અને કોર્પોરેટરોની આંખો ખોલવાનો એક પ્રયાસ એડવોકેટ ધર્મેન્દ્રસિંહ રાજપૂતે કર્યો હતો. आदमी टैक्स पे कर रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन भी उतना अच्छा होना चाहिए. दादागिरी कौन करे थे? दादागिरी कौन ગોબર વાળા બીજું કોણ દાદાગીરી? કોનું છે ગોબર? કોણ મૂકે છે? ગોબર કોનું હોય? આપણા લોકોનું તો હોય ના કોઈ ગોબર. કોણ છે પણ એ જ नाम પૂછે. तो को નામ આપણે કઈ કઈ જોવા ગયા હતા? જોવા બધા રોડ પર કેટલો ગોબર પડે, એ ગંદકી કેટલી બધી બીમારીઓ ના થાય તો શું થાય? પૈસા કોની કરે ઝૂંપડપટ્ટી? ખાવાના પૈસા નહીં તો દવાના પૈસા કઈથી લાવવાના? કોર્પોરેટર અહીં આવે છે જોવા માટે? બધા કોર્પોરેટર મરી ગયા આ બાજુના. આ કોર્પોરેટર નગર સેવક બની ગયા છે. બિલ્ડરો સાથે મેલ મિલાપ. વોર્ડ નંબર 19ના કોર્પોરેટર બધા જ મરી ગયા છે. કોઈ આ બાજુ જોવા આવતા નથી, ખાલી વોટિંગની વખતે જોવા માટે આવે. तो कॉर्पोरेशन ની ચૂંટણી આવશે તો સંસદ યાત્રા નીકળશો? અમે તો નીકળીએ જ છે ને. એટલો બધો ઊંડો ખાડો છે ને, તેને કીધું કે થોડું ના કહે કરતા કે ના તમારે અરજી કરવાની. અરજી નહીં, આ બધું થઈ જશે. હું અરજી કરી દઈશ. કોને અરજી કરવાનું કીધું? અરજી કરવાનું જે રોડ કરવા આવે તે એ લોકો રોડ બનાવે તે જમણ તો જેટલું કીધું એટલું તો એ રોડ થશે કામ નહીં તો નહીં થાય. આવું કે શું કરવાનું આવે? घर से 10,000 रुपया मांगते, कहाँ से देगा? कौन पैसा मांगता है? कॉर्पोरेशन वाले कि हम करा देंगे, ये करा, इतना पैसा भरो, इतना पैसा कहाँ से भरेंगे? यहाँ के कॉर्पोरेटर से बात की आपने? ये कॉर्पोरेटर से बातचीत नहीं हुआ है. कॉर्पोरेटर कौन है यहाँ पे, पता है आपको? कॉर्पोरेटर का नाम पता है? नहीं. वार्ड कौन सा है ये पता है? वार्ड कौन सा है ये पता है? तरसाली में पड़ता है. क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंभू भाई है. हम लोग पैसा भरे हुए का करीब 5 साल हो गया. 3-3 हज़ार रुपये आते, पानी का ठिकाना नहीं पड़ता. 5 साल हो गया, 3-3 हज़ार रुपये भरे आते, पानी का ठिकाना नहीं पड़ता. धर्मेंद्र सिंह राजपूत, बड़ौदा बार. आज थोड़ी बारिश हुई हल्की सी कई दिनों के बाद, तो मैंने सोचा कि आखिर हमारे वार्ड नंबर 19 की स्थिति क्या है. प्रथम पैराडाइज से निकला, वहाँ स्थिति दयनीय है. वहाँ एक इलेक्ट्रिक का वायर निकला हुआ था, कोई मर सकता था. याग्निक नगर, गोकुल नगर, जावेर नगर, गणेश नगर, पार्वती नगर, इंदिरा नगर और जितने नगर हैं, उसके बाद बैकुंठ धाम की स्थिति तक पहुंचते पहुंचते बहुत बुरा हाल है. उसके पीछे हवेली रोड से आते हुए ये जो रोड हमने देखा, यहाँ पर कॉर्पोरेशन, कमिश्नर और बीजेपी का मेलजोल, पैसे का गोलमाल, केवल अत्याचार चल रहा है. अब मैं ये कहना चाहता हूँ 19 नंबर वार्ड के वासियों, पूरे बड़ौदा में गंदगी, ये लैंडफिल और ये रोड और गार्बेज, ये जितने गंदगी चीजें यहीं फेंका जाता है. मैं ये चाहता हूँ जाग जाओ, क्योंकि रावण को और कंस को मारने वाला एक नौजवान ही था जो कृष्ण और राम कहलाता था. आज ये रावण राज हो गया है, कंस का राज हो गया है. जिसको कृष्ण मारेंगे, जिसको राम मारेंगे. वो नौजवान थे. नौजवानों, अब जाग जाओ, अब नहीं तो कब. यहाँ एक बड़े बड़े करोड़पति पैसा देकर करोड़ों का मकान लिया जा रहा है. पानी की स्थिति दयनीय होती है. और सीनियर सिटीजन्स है जो एयरफोर्स से भी रिटायर्ड हैं, ऑफिसर्स हैं, फिर भी उनकी स्थिति ये. आखिर ये कब तक चलेगा? मेरे देशवासियों, आप अपनी आवाज उठाइए, मैं आपके साथ हूँ. जय हिंद, जय भारत. हमारे साथ कुछ सीनियर लोग हैं, दे ऑल्सो वांट टू से, यू कैन रिकॉर्ड देयर वीडियो. वार्ड ऑफिसर मिस्टर गोहिल साहब, एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए. मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप अच्छे आदमी है. मैं आपको 7 दिन का टाइम मोहलत देता हूँ मिस्टर गोहिल साहब. मैं एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राजपूत, अदरवाइज आई विल लॉज अ केस अगेंस्ट यू इन द हाई कोर्ट. मेक श्योर दैट. आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप अच्छे काम करते हैं. आज जो हमारा मुद्दा है, इसको तत्काल में लीजिए, कमिश्नर को बताइए, ये आपकी जवाबदारी. नहीं तो एक आंदोलन बहुत तेज तर्रार और जबरदस्त आंदोलन होने वाला है. फिर आप नहीं कहिएगा कि आपको बताया नहीं गया है. ये मकरपुरा
में एरिया है जहाँ पर मैं देखता हूँ कि कोई भी रोड और कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं है। बहुत ही दयनीय हालत है। रोड का तो इतना बुरा हाल है कि सोसाइटी तक पहुंचना लोगों को, अगर ये एयरफोर्स गेट से अगर सोसाइटी के अंदर कहीं भी किसी भी सोसाइटी में लोगों को जाना है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये कंडीशन मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ कि मांजलपुर एरिया, ये मानेजा एरिया और मकरपुरा एरिया, इसमें सबसे पुअर कंडीशन जो है मकरपुरा एरिया का है। ऐसा क्यों? क्या मकरपुरा एरिया में टैक्स का रेट कम है? टैक्स पूरा हम भी देते हैं, फिर ये यहाँ दो तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर क्यों नहीं सुविधाएं दी जा रही हैं? क्यों नहीं रोड की कंडीशन ठीक की जा रही है? कौन सा वार्ड है ये वार्ड नंबर 19 में आता है और मैं वार्ड नंबर 19 के जो वार्ड ऑफिसर है उनको मैं उनका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्लीज मिस्टर गोयल हैं, मिस्टर गोयल प्लीज थोड़ा ये इंश्योर करिए कि मकरपुरा एरिया वार्ड नंबर 19 में केवल मकरपुरा नहीं आता और भी आते हैं, तो मकरपुरा में ही इतना खराब क्यों कंडीशन क्यों है? आपके विस्तार में कभी कॉर्पोरेटर लोग आते हैं? कारपोरेटर का तो मुझे पता नहीं कब आते हैं, कौन आया है मुझे नहीं पता है। किसी कारपोरेटर से हमने, कॉर्पोरेटर कौन है ये पता है आपको? हाँ कारपोरेटर तो मुझे पता है, कौन है कॉर्पोरेटर? घनश्याम भाई हैं। इज इट करेक्ट? बट वो कभी आपके दुख सुख हाँ, नहीं, एक बार इस सोसाइटी में आए हैं और इस बिल्डर से कुछ ये था, कुछ अंदर के कंस्ट्रक्शन वगैरह का, उसके बारे में डिस्कस हुआ था। बट रोड के लिए हमने तो कई बार बोला है लोगों को, और ऐसे भी ऐसे मीटिंग में जो वार्ड अफसर भी यहाँ आए हुए थे तब भी बोला है कि रोड का कंडीशन बहुत बुरा है। कम से कम रोड जो है सोसाइटी तक जो अप्रोचिंग रोड है मेन रोड से, उसको ठीक किया जाए। क्या मांग क्या है अभी आपकी? हमारी मांग है कि जो सोसाइटी मतलब अपना हवेली है, हवेली के बाद से बहुत सारी इधर सोसाइटी बनी हुई है, रोड बहुत खराब है। हवेली से लेकर के पाम विला, देन रत्नम पाम लीफ एंड अप टू दिस रत्नम ग्रीन फील्ड, ये एरिया का जो रोड है छोटा सा ही स्पान है, मगर इतना ही नहीं कर पा रहे हैं